امریکہ کا ایران میں گروک اور جزیرہ قشم میں ریڈار تنصیبات پر حملہ، امریکی سینٹ کام کی جانب سے حملے کی تصدیق۔ امریکی طیاروں نے 4 ایرانی ڈرونز کے جواب میں کارروائی کی، امریکی فوج نے تمام ایرانی ڈرونز کو مار گرایا، سینٹ کام۔ پاسداران انقلاب کا امریکی حملے کے جواب میں خطے میں امریکی فضائی اڈوں کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کے ساتھ معاملات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کو اچھی ڈیل کی پیشکش کی ہے، جنگ کے خاتمے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ ایران کے پاس صرف 20% میزائل باقی ہیں۔ بالآخر ہمارے ساتھ معاہدہ کرنے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں۔ ابنائے ہرمز کھلنے کے بعد تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہوگی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا NBC کو انٹرویو۔ ایران ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا رہا ہے۔ سعودی عرب خطے کا بڑا ملک اور اہم کھلاڑی ہے۔ ایران سعودی عرب مل کر خطے میں امن و استحکام اور ترقی لا سکتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر اور امریکی صدر کی ملاقات حقیقت پسندانہ نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ حقیقی دنیا میں نہیں رہ رہے۔ آیت اللہ سید علی خامنائی پر حملے کے وقت میں اسی دفتر موجود تھا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ امریکی صدر ایران کے منجمد اثاثے بحال کر کے مذاکراتی ڈیڈ لاک ختم کر سکتے ہیں۔ $24 ارب ایران سے سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے بڑی رقم نہیں ہے، یہ ایران کا پیسہ ہے، امریکہ کا نہیں۔ جنگ اور ناکہ بندی جاری رہی تو ایران جنگ کو بحر ہند، بحیرہ احمر، باب المندب اور بحیرہ روم تک لے جائے گا۔ ٹرمپ اور ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی ملاقات کا کوئی امکان نہیں، ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ روسی صدر پوٹن کا ایرانی عوام کو زبردست خراج تحسین، ایران کو داد دینی چاہیے کہ وہ اندرونی طور پر تقسیم نہیں ہوا۔ ایرانی سوسائٹی مسلسل مضبوط ہو رہی ہے۔ ایرانی قیادت نے عوام سے اپیل کی تھی کہ ملک کے لیے جان قربان کریں۔ 50 لاکھ افراد نے وطن پر جان قربان کرنے کے لیے لبیک کہا۔ ایرانی عوام کا یہ جذبہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ نہ تو ایران نے کبھی روس سے اسلحہ مانگا اور نہ روس نے ایران کو اسلحہ دیا۔ روسی صدر پوٹن۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے روس، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان اور قازقستان کے وزرائے داخلہ کی بشکیک میں الگ الگ ملاقاتیں۔ روسی ہم منصب سے غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام سمیت غیر قانونی شہریوں کی وطن واپسی کے لیے باہمی تعاون بڑھانے اور انسداد منشیات کے لیے تعاون کے فروغ کے معاہدوں پر دستخط۔ تاجکستان کے وزیر داخلہ سے ملاقات میں افغانستان میں دہشت گردوں کے کیمپ خطے کے لیے سیکورٹی خدشات کا باعث قرار۔ محسن نقوی نے ازبکستان، کرغزستان اور قازقستان کے وزرائے داخلہ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ گلگت بلتستان میں شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل، کل ووٹنگ ہوگی۔ پرامن اور شفاف انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسروں اور ریٹرننگ افسروں کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات حاصل۔ عوام اپنی مرضی کے امیدواروں کو ووٹ دیں اور انتخابی عمل میں بھرپور شرکت کریں۔ 9,58,480 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا وقت ختم، جلسے، جلوس، ریلیاں، کارنر میٹنگز، انتخابی مہم اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی عائد۔ 24 نشستوں کے لیے تمام حلقوں میں مختلف سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ گلگت بلتستان انتخابات، پی ٹی وی کی بھرپور لائیو کوریج، لمحہ بلمحہ اپڈیٹس صرف پی ٹی وی پر۔ پی ٹی وی کے نمائندے ہر حلقے سے براہ راست رپورٹنگ میں مصروف، تازہ ترین صورتحال پی ٹی وی کے ساتھ، انتخابی میدان سے براہ راست مناظر اور نتائج، پی ٹی وی کی انتخابی مارکے پر خصوصی نظر۔ پاکستان نے گلگت بلتستان انتخابات سے متعلق بھارتی بیانات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ بھارت عالمی سطح پر غلط بیانی اور پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے۔ بے بنیاد دعوے قابض افواج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین اور منظم خلاف ورزیوں سے توجہ نہیں ہٹا سکتے۔ مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر ایک تسلیم شدہ تنازع ہے۔
पाकिस्तान ने हक़ खुद इरादियत को कश्मीरी अवाम का बुनियादी हक़ करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कल अदम तंजीम करार। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। तंजीम को आज़ाद जम्मू व कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कल अदम करार दिया गया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुँचाने के माकूल शवाहिद मौजूद। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस पाई गई। सदर आज़ाद जम्मू व कश्मीर ने तंजीम को कल अदम करार देने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन। हुकूमत ने मुल्क भर के छोटे दुकानदारों के लिए आसान और इख्तियारी फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करा दी। दुकानदार की जानिब से जाहिर करदा फरोख्त पर 1% फिक्स टैक्स आयद होगा। दुकानदार सिर्फ एक सफ़े का सादा फॉर्म जमा कराएंगे। स्कीम का इतलाक 20 करोड़ रुपए या उससे कम सालाना टर्नओवर वाले दुकानदारों पर होगा। स्कीम से फायदा उठाने के लिए कम अज कम 25,000 रुपए जमा कराना लाजिम होगा। स्कीम में शामिल दुकानदारों को FPR की जानिब से खुसूसी शिनाख्ती प्लेट जारी होगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए कमी। नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे पर बरकरार रखने का फैसला। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। डिजिटल मईशत और बरामदात के फरोग में अहम पेशरफ्त। SIFC की मुआवनत से एक्सपोर्टर्स स्पेशलाइज्ड फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में रकूम बरकरार रखने की हद 35 से 50% तक बढ़ा दी गई। रेगुलेटरी पाबंदियों में नरमी और खुसूसी डेबिट कार्ड्स के इजरा से आलमी अदायगियाँ आसान बनाई गईं। रवा माली साल में पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की बरामदी आमदन 95 करोड़ 90 लाख डॉलर तक पहुँच गए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का किसान दोस्त विजन। पंजाब में पहली मरतबा काश्तकार को तमाम तर सहूलतें गाँव के करीब एक ही छत तले मुयसर। पंजाब काश्तकार के लिए वन स्टॉप एग्रीकल्चर इनपुट मार्केट के दौर में दाखिल। पंजाब के काश्तकार की तकदीर बदल चुकी है, अच्छे दिन आ चुके हैं। पंजाब के काश्तकार की सहूलत के लिए हर इक़दाम करेंगे वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ। भारतीय फौज के गोल्डन टेम्पल पर ऑपरेशन ब्लू स्टार को 42 साल मुकम्मल। सिख बरादरी ताहाल इंसाफ की मुंतजर। ऑपरेशन में हजारों मर्द, खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे भारतीय फौज की सफाकी का निशाना बने। बरतानिया, कनाडा, अमरीका और दीगर ममालिक में ऑपरेशन ब्लू स्टार पर भारत के खिलाफ मुजाहरे किए गए। साबिक भारतीय वज़ीर आला पंजाब प्रकाश सिंह बादल ने सिखों के खिलाफ ऑपरेशन को सोची समझी साजिश करार दिया। मकबूजा कश्मीर के मासूम बच्चे भारतीय हुकूमत के जुल्म और तशद्दुद का शिकार। भारतीय फौजी कार्रवाइयों ने 1,08,000 से जायद कश्मीरी बच्चों को यतीम कर दिया। आज़ादी पसंद रहनुमाओं का आलमी इदारों से भारतीय फौज के जुल्म का शिकार कमसिन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। भारतीय फौज के जाली मुकाबलों में कम उम्र कश्मीरी बच्चे शहीद और बहुत से भारतीय काले कवानीन के तहत जेलों में कैद हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस। तालिबान रजीम की नाअहली से अफगानिस्तान में सियासी और इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। तालिबान रजीम की सख्त पॉलिसियों ने अफगानिस्तान को आलमी तन्हाई की जानिब धकेल दिया। आधी आबादी को इमदाद की ज़रूरत और 40 लाख बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। काबिज़ तालिबान रजीम में 400 से ज़्यादा सेहत के इदारे बंद, लाखों लोग बुनियादी इलाज से महरूम हैं। नॉर्वे की रिफ्यूजी काउंसिल की रिपोर्ट में इंकशाफ। गिलगित बल्तिस्तान में बढ़ते दर्जा हरारत और मौसमियाती तब्दीली के असरात। हस्पर हुपर ग्लेशियर पिघलने से पानी के बहाव में इजाफा, एंड करने का अलर्ट जारी। जिला गिलगित के इलाके जगलोट, गोरू, रहीमाबाद, नोमल, जोतल, जगलोट कॉलोनी और छलमिश के रहायशियों को एहतियात करने की अपील। इंतजामिया को दरिया किनारे हिफाजती पुश्तें मजबूत बनाने जबकि मुसाफरों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बलोचिस्तान की बेटी आयशा बलोच ने पाकिस्तान का परचम सर बुलंद कर दिया। एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। श्रीलंका में एशियन गेम्स के रेसलिंग फाइनल में आयशा बलोच ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। आयशा बलोच बेहतरीन तकनीक, मजबूत दाव पेच और शानदार एतमाद के बायस टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहीं।
نیشنل टी20 कप का फाइनल कल खेला जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में कराची वाइट्स और एबटाबाद की टीमें टाइटल के लिए आमने सामने होंगी। शायकीन के लिए दाखिला मुफ्त। मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरोव पहले ग्रैंड स्लैम टाइटल से सिर्फ एक कदम की दूरी पर। वर्ल्ड नंबर 3 ज़ेवरोव फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में ज़ेवरोव ने जमहूरियत चेक के जैकब मेंसिक को शिकस्त दी। फाइनल में ज़ेवरोव का मुकाबला इटली के फ्लावायो कोबोली से होगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में चंद दिन बाकी चमचमाती ट्रॉफी मेक्सिको सिटी पहुंच गई। मेक्सिको के मेयर की तकरीब में शिरकत। ब्राजील के साबिक आलमी चैंपियन रॉबर्टो कार्लोस और मेक्सिको के लेजेंड फुटबॉलर ह्यूगो सांचेज भी नुमाइश में शरीक हुए। शायकीन का जोशो खरोश दीदनी था। आलमी कप का इफ्ताह मैच 11 जून को मेक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। शेज़ुर्खें आपने जानी, खबरों की तफसील जानिएगा इस ब्रेक के बाद। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें धान की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज के लिए अहम पैगाम। सदर पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत और वजीर आजम पाकिस्तान के कैशलेस इकोनॉमी विजन के तहत बेनजीर कफालत प्रोग्राम की आइंदा किस्त की अदायगी अब होगी सिर्फ और सिर्फ बेनजीर मोबाइल सिम पर खुलने वाले डिजिटल वॉलेट अकाउंट के जरिए। तो जिन मुस्तहिक खवातीन ने अभी तक बेनजीर मोबाइल सिम नहीं ली, वो अभी अपना जाती मोबाइल फोन साथ लेकर करीबी BISP दफ्तर जाएं और अपनी बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करें। याद रखें, बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है। कतार ना इंतजार, खवातीन होंगी बाइख्तियार। बेनजीर का बेनजीर ख्वाब, हर औरत खुद मुख्तार बाइख्तियार। इंडस्ट्री के हमराह, हुनर से रोजगार का सफर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खुसूसी इक़दाम। नेफ्टैक और सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के बाहमी इश्तराक से हाई डिमांड स्किल्स में मुफ्त फन्नी तरबियत के मौके, माइनिंग टेक्निक्स फॉर सॉल्ट एक्सट्रैक्शन, सॉल्ट पैकेजिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, वैल्यू एडिशन एंड बाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन द सॉल्ट इंडस्ट्री और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। दरख्वास्त देने के लिए nsis.nafdac.gov.pk। हुनरमंद नौजवान, रोशन पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक। तफसीली खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे कि अमेरिका ने ईरान में गुरूक और जजीरा क़शम रेडार तनसीबात पर हमला कर दिया है, जबकि पासदारान इनकलाब ने अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम ने अमरीकी हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि अमरीकी तैयारों ने ईरानी ड्रोन्स के जवाब में कार्रवाई की है। अमरीकी फ़ौज ने तमाम ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया कि अपना हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक की जानिब से दागे गए मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोका। हमले में किसी अमरीकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि अपना हुर्मुज़ के करीब अमरीकी बहरी जहाज़ों की मौजूदगी पर वार्निंग फायर किए गए थे। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया, जबकि 4 टैंकरों पर फायरिंग की जो बगैर इजाज़त अपना हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। अपना हुर्मुज़ की मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ मामलात अच्छे अंदाज में आगे बढ़े हैं, जल्द किसी मुआहदे पर पहुंचने की तवक्को है। NBC को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरी इंतजामिया को ईरान से डील करने में अहम कामयाबियां हासिल हो रही हैं, ताहम जंग के खात्मे में कुछ वक्त दरकार होता है। हमने ईरान को अच्छी डील की पेशकश की है और इसकी जानिब से मुस्बत रद्द अमल के मुंतज़िर हैं। उसके पास बिल आखिर हमारे साथ मुआहिदा करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ खुलने में ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतों में नुमायां कमी होगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि सऊदी अरब ख़ित्ते का बड़ा और अहम मुल्क है। ईरान और सऊदी अरब मिलकर ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। ईरान ने हमेशा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत दी है। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। हमसाया मुल्कों में अमरीकी अड्डे ना होते तो उन पर हमले की नौबत ना आती। उन्होंने कहा कि पहले ही आगाह कर दिया था कि हमले की सूरत में अमरीकी अड्डे निशाने बनाएंगे। उन्होंने जोर दिया कि जंगबंदी का इतलाक लिबनान समेत तमाम महाजों पर होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिस वक्त सुप्रीम लीडर की शहादत हुई, मैं उसी दफ्तर में था। मैं आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के दफ्तर के मलबे से निकला। रूस ने अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी माहदे पर पाकिस्तानी सालिसी की हिमायत करते हुए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोफ ने रूसी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान जारी सफारती कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और किसी मुमकिन माहदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकराती अमल का तसलसल इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुमकिन समझौते या माहदे में न सिर्फ ईरान बल्कि उसके हमसाया ममालिक के सिक्योरिटी और सियासी मफादात को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, ताकि ख़ित्ते में देर पा इस्तेहकाम पैदा किया जा सके। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि अमरीका खुद भी ईरान के साथ मौजूदा कशीदगी की संगीनी को तस्लीम करता है, ताहम वो इस बहरान से निकलने के लिए वाज़ेह और मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने में मुश्किलात का शिकार भी दिखाई देता है। सरगेई लावरोफ का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल की बुनियादी जिम्मेदारी बड़ी हद तक अमरीका पर आयद होती है, क्योंकि माजी की बाज़ पॉलिसियों और फैसलों ने ख़ित्ते में अदम एतमाद और तनाव को बढ़ाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और मिस्र भी सफारती राबतों और मुज़ाकराती अमल में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इस तनाज़े के हल के लिए मुख्तलिफ इलाक़ाई ममालिक की शमूलियत इस अमर की निशानदही करती है कि ख़ित्ते के अहम फ़रीक तनाज़े के पुरअमन हल के ख़्वाहां हैं। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मौजूदा हालात में सबसे अहम बात मुज़ाकरात का सिलसिला किसी भी सूरत मुनक़ता न होना है, क्योंकि मुसलसल बातचीत ही कशीदगी में कमी और किसी काबिल कबूल हल तक पहुँचने का वाहिद रास्ता है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि अमरीकी सदर ईरान के मुंजमद असासे बहाल करके मुज़ाकराती डेडलॉक ख़त्म कर सकते हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू में मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीका के लिए 24 अरब डॉलर्स ईरान से समझौते पर पहुंचने के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। उन्होंने कहा कि मुंजमद रकम ईरान का पैसा है, अमरीका का नहीं। अमरीका को समझना चाहिए कि ईरान से समझौते के लिए दरकार रकम उससे लड़ने के लिए दरकार रकम से बहुत कम है। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि जंग और नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जंग को बहरे हिंद, बहरा अहमर, बाबुल मंदब और बहरा रोम तक ले जाएगा। मोहसिन रज़ाई ने ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई की मुलाकात के इम्कानात को भी मुस्तरद कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी अवाम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ईरान को दाद देनी चाहिए कि वो अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं हुआ। ईरानी सोसाइटी मुसलसल मजबूत हो रही है। सेंट पीटर्सबर्ग में इक्तिसादी फोरम से इजहार ख्याल करते हुए रूसी सदर ने कहा कि ईरानी क़यादत ने अवाम से अपील की थी कि मुल्क के लिए जान कुर्बान करें। 50 लाख अफराद ने वतन पर जान कुर्बान करने के लिए लब्बैक कहा। ईरानी अवाम का ये जज्बा हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि ना तो ईरान ने कभी रूस से असलहा मांगा और ना ही रूस ने ईरान को असलहा दिया। मज़ीद खबर में आपको आगाह करेंगे कि बिश्केक में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए दाखिला ने अलग अलग मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला और रूसी हम मंसब व्लादिमीर कोलोकोल्सेव की मुलाकात में अहम मुआहदों पर दस्तखत किए गए। मोहसिन नकवी और ताजिकिस्तान के वज़ीर दाखिला रमज़ान रहीमज़ादा ने अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंपों के बारे में गुफ्तगू की। दोनों वज़राए दाखिला ने इस बात पर जोर दिया कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप्स और मुनशियात की पैदावार ख़ित्ते के लिए शदीद सिक्योरिटी ख़दशात का बायस हैं। वज़ीर दाखिला और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर दाखिला मेजर जनरल अजीज़ ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन और मुश्तरका ट्रेनिंग पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़राए दाखिला ने ताउन बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का भी फैसला किया। मोहसिन नकवी और किर्गिज़स्तान के वज़ीर दाखिला नियाज़ बेकोव ओलान
होमोकानोविच के दरमियान मुलाकात में मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। काज़ाकिस्तान के वज़ीर दाखिला से मुलाकात में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। उन्होंने बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए वज़ारत दाखिला के दरमियान वर्किंग ग्रुप कायम करने का भी फैसला किया। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से आपको खबर देंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात के लिए मुहिम का वक्त गुज़श्ता रात 12 बजे ख़त्म हो गया है। ज़िला कांचे के तीनों हलकों में 15 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास जबकि 26 को हसास तरीन करार दिया गया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली आलम से। मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा कि गांचे में इंतखाबी तैयारियों के हवाले से और गहमा गहमी के सिलसिले में क्या सूरत हाल है? जी, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात के पोलिंग के लिए अब सिर्फ चंद घंटे रह गए हैं। इंतखाबी मुहिम चलाने, रैली और जलसे जुलूस के लिए जो वक़्त है वो रात 12 बजे के बाद ख़त्म हो गए हैं। ज़िले गांचे के तीनों हलकों में कुल 151 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। हल्का नंबर 1 में 57, हल्का नंबर 2 में 48 और हल्का नंबर 3 में 46 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। अगर हम हसास पोलिंग स्टेशन की बात करें तो ज़िले गांचे में 15 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया है, जिनमें हल्का नंबर 1 में 7 हैं, हल्का नंबर 2 में 4 और हल्का नंबर 3 में भी 4 पोलिंग स्टेशन से उसको हसास तरीन करार दिया है। इसके अलावा इन तीनों हलकों में 26 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया है, जिनमें हल्का नंबर 1 में 12, हल्का नंबर 2 में 6 और हल्का नंबर 3 में 8 पोलिंग स्टेशन हैं। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के ज़िले गांचे में ऑलरेडी जो नफरी मौजूद हैं, इसके अलावा पंजाब और वफाक से आने वाले 1320 जो एहलकार हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली अपडेट करने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान की जानिब बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि कल होने वाले इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग का अमला अपने अपने मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना हो रहा है। पोलिंग के मौके पर मकामी पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देगी। मज़ीद तफसील बताएंगे गुलजार शिकरी। गुलजार, बताइएगा इस अहम दिन के हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। गिलगित बल्तिस्तान में कल आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस हवाले से तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िले शिगर जीवेले 12 में, जहाँ पर पोलिंग स्टाफ जो है वो अब से कुछ देर बाद अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर रवाना होंगे। पोलिंग स्टाफ ने रवानगी से कल अपना वोट भी कास्ट किया। अगर हम बात करें सिक्योरिटी के हवाले से तो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए हुए हैं और मुकामी पुलिस के अलावा पंजाब पुलिस के दस्ते भी शिगर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जीबी स्काउट्स और पाकिस्तान आर्मी के जो दस्ते हैं वो भी क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर ज़िले शिगर में मौजूद होंगे। अगर हम बात करें ज़िले इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन की तो उनके मुताबिक साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए इक़दाम किए गए हैं। ज़िले शिगर के हसास और जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के इजाफी नफरी भी तैनात कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें उम्मीदवारों की तो ज़िले शिगर में 10 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 4 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्कुत की जा रही है। पोलिंग स्टेशन की बात करें तो 71 पोलिंग स्टेशन ज़िले शिगर में है और 46,594 वोटर जो है वो हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। जी शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतालिक भारतीय बयानात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। भारत आलमी सतह पर गलत बयानी और प्रोपेगेंडा फैला रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बेबुनियाद दावे काबिज़ अफवाज के हाथों इंसानी हकूक़ की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों से तवज्जो नहीं हटा सकते। मसला कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। पाकिस्तान ने हक़ खुद इरादियत को कश्मीरी अवाम का बुनियादी हक़ करार दिया है। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर ने जम्मू व कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कल अदम तंजीम करार दे दिया है। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर के नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर आज़ाद जम्मू व कश्मीर ने तंजीम को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दी है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तंजीम रियासत में इंतशार फैलाने में मुलविस पाई गई है और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के पास तंजीम के खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुँचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। नोटिफिकेशन में तंजीम पर नफरत को फ़रोग़ देने और रियासती अमन को मुतासर करने के इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने एक्शन कमेटी के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल कर दिए हैं, जिसके तहत जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तमाम तंजीमों को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर लिया गया है। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने नोटिफिकेशन की कॉपियाँ तमाम वज़रा, वफाकी वज़ारत दाखिला और मुतालिका इदारों को इरसाल कर दी हैं।
हुकूमत आज़ाद कश्मीर का कहना है कि रियासत में अमन, कानून की अमलदारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। महकमा दाखिला के मुताबिक किसी भी तंजीम को अवामी अमन, सलामती और रियासती नज़्म को ख़तरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मोदी हुकूमत में मकबूजा कश्मीर के मासूम बच्चे भारत की रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजी कार्रवाइयों में 1,08,000 से जायद कश्मीरी बच्चे यतीम हुए, जबकि 2010 के बाद भारतीय फौज के पैलेट गनों और आंसू गैस के हमलों से सैकड़ों कश्मीरी बच्चे बीनाई से महरूम हो गए। भारतीय फौज के जाली मुकाबलों में कम उम्र कश्मीरी बच्चे शहीद और बहुत से भारतीय काले कवानीन के तहत जेलों में कैद हैं। आज़ादी पसंद रहनुमाओं ने आलमी इदारों से भारतीय फौज के जुल्म का शिकार कमसिन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सलामती कौंसिल की सालाना रिपोर्ट पर मुबाहिसे के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय नुमाइंदे के बयान का जवाब देते हुए कहा है कि जम्मू व कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है जो सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन के काउंसलर और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर गुल कैसर सुरवानी ने हक़ जवाब में कहा कि सलामती कौंसिल की सालाना रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान सवाल से मुतालिक मुतादिद मरासलात और 5 मई 2025 की बंद कमरा मुशावरत का जिक्र मौजूद है, जिससे तनाज़े कश्मीर की अहमियत वाज़ेह होती है। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और अवाम बदस्तूर अपने हक़ खुद इरादत से महरूम है। गुल कैसर सुरवानी ने कहा कि भारत सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद से गुरेज कर रहा है। हक़ाइक़ को मस्ख़ करके तनाज़े कश्मीर की बैनुल-अक़वामी हैसियत को तब्दील नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है, ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है, बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। सिंतास मुआहदे को गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल रखने की भारतीय कोशिशें भी बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों से इन्हिराफ के अक्कास हैं। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने स्वीडन की हुकूमत और आवाम को उनके कौमी दिन पर मुबारकबाद दी है। सदर ममलकत ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान स्वीडन के साथ अपने देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात को जो 1949 में कायम हुए थे इंतहाई कदर की निगाह से देखता है, जो बाहमी एहतराम और बैनुल-अक़वामी अमन व ताउन के लिए मुश्तरका अज़्म की मजबूत बुनियादों पर उस्तवार हैं। सदर ज़रदारी ने दो तरफ़ा रवाबित की बतदरीज तरक्की पर इत्मीनान का इजहार किया, बिलखुसूस काबिल तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्सटाइल और ज़राअत के शोबों में, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तिजारती हजम को बढ़ाने की वसी गुंजाइश है। उन्होंने मुस्तक़बिल में इन बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और वसी करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। हुकूमत ने मुल्क भर के छोटे दुकानदारों के लिए आसान और इख्तियारी फ़िक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करा दी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी ने वाज़ेह किया कि स्कीम का इतलाक़ सालाना 20 करोड़ रुपए या इससे कम टर्न वाले छोटे दुकानदारों पर होगा, जो अपनी ज़ाहिर करदा फ़रोख्त पर सिर्फ 1% फ़िक्स टैक्स अदा करके स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तफसील के लिए देखिए वक़ार हैदर की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी ने मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग में छोटे दुकानदारों के लिए नई टैक्स स्कीम की तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि मुआशी तौर पर खुद कफ़ालत की मंजिल के हसूल के लिए टैक्स शरह में इजाफे की बजाय टैक्सों के निज़ाम में वसअत लाने की ज़रूरत है। ये नई आसान टैक्स स्कीम भी इसी जानिब एक मस्बत पेशरफ्त है। आज का जो कदम हम उठाने जा रहे हैं, ये छोटे दुकानदार जो हमारे भाई और बहन जो एक ये जो पूरा सेगमेंट है, तखमीना है कोई 30 से 40 लाख जो हमारे भाई बहन हैं, ये जो हमारी छोटे दुकानदारों की बरादरी है, वो इस ज़िम्रे में आते हैं। ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिंग द टैक्स नेट। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने बताया कि स्कीम का इत्तलाक़ इन दुकानदारों पर होगा जिनका सालाना टर्न ओवर 20 करोड़ रुपए या उससे कम है। दुकानदार सिर्फ एक सफ़े का सादा फार्म जमा करा सकेंगे और जाहिर करदा फ़रोख्त पर 1% फ़िक्स टैक्स अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि स्कीम मुकम्मल तौर पर इख्तियारी है और दुकानदार चाहें तो मौजूदा टैक्स निज़ाम में भी रह सकते हैं। जो दुकानदार इस स्कीम में आएगा, उस फॉर्म को जमा कराएगा, तो उसको FBR की तरफ से एक प्लेट मिलेगी जो आपको शायद अभी स्क्रीन पे नज़र भी आएगी, और वो प्लेट अब वो अपनी दुकान के बाहर वो प्लेट लगा सकेगा। उस प्लेट के ऊपर दुकान का नाम, दुकान का NTN नंबर और टैक्स ईयर आया होंगे, और साथ ही साथ नीचे ये लिखा हुआ है कि ये दुकानदार एक फ़र्ज़ शनास टैक्स गुजार है।
بلال اظہر کیانی کے مطابق اسکیم کا مقصد چھوٹے کاروباروں کے لیے ٹیکس نظام کو آسان، شفاف اور کاروبار دوست بنانا ہے۔ اس موقع پر ممبر FBR حامد عتیق سرور نے بتایا کہ اسکیم تاجروں اور انجمن تاجران کی مشاورت سے تیار کی گئی ہے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئندہ مالی سال کی وفاقی بجٹ سے قبل جاری مشاورتی عمل کے تحت اعلیٰ سطح کے وفاقی اور خیبر پختونخوا کے حکام سے ملاقات کی۔ صوبے کی ترقیاتی ترجیحات، جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں اور معاشی ترقی و عوامی فلاح کے لیے اقدامات پر تفصیلی غور کیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ اہم ترقیاتی ضروریات کو آئندہ وفاقی بجٹ میں مناسب طور پر شامل کیا جائے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق باجوہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے خزانہ سمیت دیگر اعلیٰ وفاقی اور صوبائی حکام نے شرکت کی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے کمی کی منظوری دی گئی ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 377 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے تحت ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 380 روپے 78 پیسے برقرار رکھی گئی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا ہے۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں ہسپر ہوپر گلیشیئرز کے پگھلنے کے باعث پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کے بعد NDMA نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق NDMA صورتحال سے باخبر ہے اور صورتحال کی مکمل مانیٹرنگ کر رہا ہے۔ NDMA نے ضلع گلگت کے علاقے بشمول جگلوٹ، رحیم آباد، ٹومل، جوتل، جگلوٹ کالونی اور چلمش کے رہائشیوں کو احتیاط کرنے کی اپیل کرتے ہوئے انتظامیہ کو دریا کے کنارے حفاظتی پشتیں مضبوط بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اس دوران مسافروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ بلوچستان کے جنوبی اضلاع میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم بعد از دوپہر بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ تاہم ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہا۔ اور اب آج زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ اور ناظرین، اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں دنیا کے آلودہ ترین شہروں کے بارے میں۔ پہلے نمبر پر مصر کا دارالحکومت قاہرہ رہا، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 165 ریکارڈ کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر انڈونیشیا کا دارالحکومت جکارتہ رہا، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 164 ریکارڈ کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر جمہوریہ کانگو کا دارالحکومت کنسارشا رہا، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 162 ریکارڈ کیا گیا۔ فی الحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو واپس یہ چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ کچھ دیگر خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ SIFC کے قیام کے بعد IT برآمدات اور فری لانسنگ کے فروغ کے لیے پالیسی اور مالیاتی اصلاحات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ گزشتہ 3 برس میں SIFC کی معاونت سے IT اور فری لانسنگ سیکٹر کے لیے کاروبار دوست ماحول اور ریگولیٹری سہولتوں کو فروغ ملا ہے۔ ایکسپورٹرز اسپیشلائزڈ فارن کرنسی اکاؤنٹس میں رقوم برقرار رکھنے کی حد 35 سے 50% تک بڑھائی گئی۔ فارن کرنسی اکاؤنٹس پر ریگولیٹری پابندیوں میں نرمی اور خصوصی ڈیبٹ کارڈز کے اجراء سے عالمی ادائیگیاں آسان بنائی گئیں۔ فری لانسرز کے لیے نیا بینکاری فریم ورک متعارف کراتے ہوئے بینکاری سہولتوں اور اکاؤنٹ اوپننگ کے عمل کو آسان بنایا گیا۔ SIFC کی معاونت سے کیے گئے ان اقدامات نے IT برآمدات بڑھانے اور زیادہ زر مبادلہ ملک میں لانے کی راہ ہموار کی۔ رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں پاکستانی فری لانسرز کی برآمدی آمدن 95 کروڑ 90 لاکھ ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ بھارتی فوج کے آپریشن بلو سٹار کو 42 سال مکمل ہو گئے ہیں، مگر سکھ برادری آج بھی انصاف کی منتظر ہے۔ آپریشن بلو سٹار کا آغاز 1 جون 1984 کو گولڈن ٹیمپل پر سفاک بھارتی فوج کے حملے سے ہوا تھا، جس کے دوران ہزاروں نہتے مرد، خواتین، بزرگ اور بچے بھارتی فوج کی سفاکیت کا نشانہ بنے تھے۔ آپریشن بلو سٹار پر برطانیہ، کینیڈا، امریکہ اور دیگر ممالک میں بھارت کے خلاف مظاہرے بھی کیے گئے۔ اس دوران بھارت کے کئی سکھ افسران نے مستعفی ہونے کا اعلان بھی کیا تھا۔
साबिक भारतीय वजीर आला पंजाब प्रकाश सिंह बादल ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा था कि भारतीय फौज नाअहल है। सिख मौरख हरजिंदर सिंह दलगीर के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार एक सोची समझी साजिश थी। मारूफ सहाफ़ी शेखर गुप्ता ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को भारतीय फौज की नाक़िस मनसूबाबंदी और सबसे बड़ी नाअहली करार दिया। चेयरमैन पंजाबी सिख संगत पाकिस्तान सरदार गोपाल सिंह चावला ने ननकाना साहिब में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 6 जून सन 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान हज़ारों निहत्ते सिख मर्द और ख़वातीन और बच्चों की बेदर्दी से कत्ल किया गया। सिख कौम वाक़े के 42 साल बाद भी इंसाफ की मुंतज़िर है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों को नोटिस लेना चाहिए। सरदार गोपाल सिंह चावला ने कहा कि इस दिन भारत ने न सिर्फ बेगुनाह सिखों का कत्लेआम किया बल्कि गुरुद्वारे की बेहुरमती भी की। सिख कौम भारत से इस जुल्म का ज़रूर बदला लेगी। उन्होंने कहा कि खालिस्तान सिखों का हक़ है जो हम लेकर रहेंगे। तालिबान रजीम की नाअहली और हट धर्मी अफगानिस्तान में सियासी और इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अफगानिस्तान में मौशी बहरान, गुर्बत और ग़िज़ाई किल्लत ने अफगान शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी। नॉर्वे की रिफ्यूजी काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम में अफगानिस्तान में इंसानी बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है। अफगानिस्तान की तकरीबन आधी आबादी को इमदाद की ज़रूरत और 40 लाख बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। काबिज़ तालिबान रजीम में 400 से ज़्यादा सेहत के इदारे बंद, लाखों लोग बुनियादी इलाज से महरूम हैं। तालिबान रजीम की जानिब से ख़वातीन पर सख्त पाबंदियों ने अफगान मुआशरे का आधा हिस्सा अमली तौर पर निज़ाम से बाहर कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक कमज़ोर मुआशी ढांचा, तालिबान रजीम की नाकामी और नाअहली ने अफगान अवाम को मुकम्मल तौर पर आलमी इमदाद की जानिब देखने पर मजबूर कर दिया है। हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के 1256वें सालाना उर्स का आगाज़ हो गया है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने उर्स का इफ्तिताह किया, मज़ार पर हाज़री दी, फातिहा ख़ानी की और फूल रखे। उन्होंने मुल्क की तरक्की, अवामी खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की। गवर्नर सिंध ने ज़ायरीन से मुलाकात की जबकि मुस्तहक़ अफराद ने कपड़े भी तकसीम किए। सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने उसके मौके पर ज़ायरीन के लिए किए गए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उनका कहना था कि हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी की तालीमात मोहब्बत, बर्दाश्त, अख़ुवत और इंसानियत की खिदमत का पैगाम देती हैं। औलिया किराम की तालीमात पर अमल करके माशरे में अमन, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ दिया जा सकता है। पंजाब हुकूमत ने ज़मीनों की खरीदो फरोख्त के निज़ाम में एक बड़ी और फैसला कुन तब्दीली करके नया डिजिटल निज़ाम मुतारिफ करवाया है, जिसका मकसद फ्रॉड का खात्मा और मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाना है। तफसील बताएंगे अलीपुर से मलिक अलादित्ता बोसन। बिल्कुल, पंजाब में अराजी निज़ाम की इस्लाह के तहत बड़ी तब्दीली कर दी गई है। रिवायती फर्द का खात्मा करके जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का निफाज कर दिया है, जिसके बाद जमीन या जायदाद की खरीदो फरोख्त सिर्फ ग्रीन सर्टिफिकेट के जरिए होगी। मिल्कियत और कब्जे की तस्दीक के लिए ग्रीन सर्टिफिकेट ही काफी होगा, जिससे जेली कागजात और डबल सेल जैसे मसाइल का खात्मा होगा। पंजाब हुकूमत की हदायत के मुताबिक अब जायदाद के लेन देन ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हुकूमत की तरफ से तस्दीक शुदा होगा, जिससे अवाम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और जायदाद के रिकॉर्ड पर एतमाद भी बढ़ेगा। बहुत अच्छा इकदाम है वज़ीर आला पंजाब का, क्योंकि लोगों के रकबों पे जो कब्जे होते थे, अब इस सर्टिफिकेट के होते हुए कभी किसी के रकबे पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। एक प्रोग्राम अच्छा है, ना जायज लोग काबिज हैं, ये अच्छा फैसला थी वैसे हुकूमत की बड़ी मेहरबानी, इन रकम अच्छा थी वैसे। रिवायती फर्द और दूसरे पुराने तरीक़ेकार को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जायदाद के शोबे में एक बड़ी तब्दीली है, जो न सिर्फ शफाफियत बढ़ाएगा बल्कि अवाम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेगा। मलिक अलादित्ता बोसन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, अलीपुर। मारूफ अफसाना निगार और ड्रामा निगार डॉक्टर अनवर सज्जाद को हमसे बिछड़े 7 बरस बीत गए, मगर वो अपनी खूबसूरत तहरीरों की सूरत में आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनकी अदबी खिदमात की तफसीलात बता रही हैं लाहौर से शुमाइला शब्बीर। 27 नवंबर 1934 को लाहौर में पैदा होने वाले डॉक्टर अनवर सज्जाद पेशे के एतबार से मेडिकल के शोबे से वाबस्ता थे। पहलूदार शख्सियत के मालिक अनवर सज्जाद ड्रामा नवीस भी थे और कामयाब अदाकार भी। कैनवस पर रंगों के साथ जज्बात के इजहार का फन जानने के साथ साथ तमाम शोबों में यकसा महारत की हामिल शख्सियत थे। डॉक्टर अनवर सज्जाद ने अपने अफसानों में हकीकत को फैंटेसी के रूप में बयान करने के लिए नई जहत इस्तेमाल की। डॉक्टर अनवर सज्जाद ने कहानियां भी लिखी, किरदार भी बने और फनकारी के जौहर भी दिखाए। क्या कह रही है सफिया? मैं माफी मांगू। मैं चौधरी करमदाद
डॉक्टर अनवर सज्जाद का पीटीवी से खुसूसी लगाव रहा। पीटीवी के साथ गुजरे लम्हात आखिरी अयाम तक जहन में नक्श रहे। डॉक्टर अनवर सज्जाद 1950 में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से मुंसलिक हुए। उनकी मशहूर किताबों में रगे संग, चौराहा, जन्म रूप, नीली नोटबुक, तलाश वजूद, पहली कहानियाँ और खुशियों का बाग शामिल हैं। ड्रामे बहुत लिखे, लेकिन जिक्र है कई साल का उनकी ऐसी तहरीर है जो अब भी मदाहों के जहन में ताज़ा है। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कराची में ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाने और शहरियों के लिए सफ़र को महफूज बनाने के लिए शारा फैसल पर लेन सिस्टम पर अमल दरामद मज़ीद सख्त कर दिया गया है। लेन की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ और चालान भी किए जा रहे हैं। तफसील बताएंगे सैयद जहांगीर अली अपनी इस रिपोर्ट में। कराची की मसरूफ तरीन शारा फैसल पर रोजाना हजारों गाड़ियां सफर करती हैं। बढ़ते हुए ट्रैफिक और रश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना रहता है। इसी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लेन सिस्टम पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे और हादसात में कमी लाई जा सके। लेन सिस्टम के तहत सड़क को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है और हर गाड़ी को अपनी मखसूस लेन में चलने की हिदायत दी गई है। गैर जरूरी तौर पर लेन तब्दील करना, रोड मार्किंग की खिलाफ वर्जी करना या दूसरी लेन में दाखिल होना न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर करता है बल्कि हादसात का भी सबब बनता है। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक लेन डिसिप्लिन पर अमल से सड़कों में नज़्म ज़ब्त बेहतर होगा, ट्रैफिक जाम में भी कमी आएगी। अगर मोटरसाइकिल वाले या रिक्शा वाले या स्लो मूविंग गाड़ियाँ, ये कमर्शियल गाड़ियाँ, ये अगर राइट के दोनों ट्रैक में चली जाएंगी तो उनको ई टिकट इशू होगा। और इसी तरह वो कार वाले जिनको फास्ट टैग अलाउ है वो अगर बस लेन में या बाइक लेन में चले गए तो उनको ई टिकट इशू होगा। अगर उनको शारा फैसल से एग्जिट लेना है 400 मीटर पहले वो अपना सेफ डिस्टेंस से इंडिकेटर्स दें, अपने बैक वे मिरर्स का इस्तेमाल करें और जिस एग्जिट से भी उनको आउट होना है उससे वो इंडिकेटर देते हुए एग्जिट हो सकते हैं। अब तक 245 ई टिकट जो है शारा फैसल के ऊपर इशू किए जा चुके हैं, जिसमें तकरीबन 50% तादाद जो है वो मोटरसाइकिल चलाने वाले हजरात की है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शारा फैसल पर लेन डिसिप्लिन को यकीनी बनाने की मुहिम जारी रहेगी और शहरियों से अपील है कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सालाना जॉब फेयर का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद तलबा को रोजगार के मौक़े और अमली ज़िंदगी के तकाज़ों से रोशनास कराना था। मज़ीद तफसील मोहम्मद उस्मान से। तालीम और अमली ज़िंदगी के दरमियान फासले को कम करने और नौजवानों को जदीद पेशावराना मौक़े फराहम करने के लिए रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में करियर एक्सपो और जॉब फेयर सजाया गया। तलबा ने सेहत, माहौलियात, टेक्नोलॉजी और समाजी बहबूद जैसे अहम मौज़ूआत पर मबनी खुसूसी स्टॉल्स भी लगाए जो शुरका की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों की शोकेसिंग आपने देखी होगी, इनके प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आगे चलकर इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए बड़े करामत शहरी और करामत मीडिया मैन साबित होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत चीज़ जल्दी बदल जाता है। हमारे मीडिया साइंस जो कंप्यूटर साइंस से फ़ायदा उठाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हिस्सा ले सके। तलबा ने इस अहम काविश को अपने मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन संगे मिल करार दिया। मुख्तलिफ कंपनियों और मीडिया के नुमाइंदों ने न सिर्फ तलबा के इंटरव्यूज किए बल्कि इन्हें इंटर्नशिप और मुस्तकबिल के करियर की मनसूबाबंदी से मुतल्लिक मुफीद मशवरे भी दिए। मैंने कश्मीरी चाय पे काम किया, जिसको कश्मीरी में नून चाय कहते हैं, और नून चाय इसलिए कहते हैं क्योंकि वो नमकीन होती है। बेसिकली नून जो है वो कश्मीरी का वर्ड है, उसमें चीनी की जगह जो है वो नमक डलता है। फूड वेस्टेज जो होती है पाकिस्तानी शादियों में, उसके लिए मैंने बरकत बॉक्सेस लॉन्च किए हमारे इस कैंपेन में, जिनका मकसद ये है कि अगर हमारा खाना वेस्ट हो रहा है हम उसको वेस्ट करने के बजाय डोनेट कर। सिंपल मॉड्यूलर सिस्टम डिज़ाइन किया, एक ही ज्वेलरी बॉक्स, ताकि आप जो है जितनी भी ज्वेलरी है वो एक ही बॉक्स के अंदर रखें। ये 3 टियर सिस्टम है, आप इसको फर्दर भी बढ़ा सकते हैं। मैंने ट्रांसफॉर्मेबल पैकेजिंग डिज़ाइन की है टू प्रमोट पंजाबी कल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी। शुरका का कहना है कि जॉब फेयर नौजवानों की पेशावराना सलाहियतों को निखारने और मुल्क में बेरोजगारी के खात्मे में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात कम करने के लिए ननकाना साहब में शजरकारी मुहिम के दौरान जिले भर में 2 लाख से जायद नए पौधे लगाए गए। पौधों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दामात की वजह से 90% पौधे कामयाबी से नशोनुमा पा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे जावेद अहमद माविया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सरसब्ज पंजाब विजन के तहत जिला ननकाना साहब में गुज़श्ता 15 माह के दौरान 2,08,786 नए पौधे लगाए गए, जिनमें से 1,64,713 पौधे महफूज हैं और कामयाबी से नशोनुमा पा रहे हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से शहरी और देहाती इलाकों के अलावा तमाम शाहराहों, राब्ता सड़कों, ग्रीन बेल्ट, तफरी मुकामात
और सरकारी इमारतों में बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई है। 6 किलोमीटर मोटरवे टूल प्लाजा तक दोनों तरफ दरख्त लगाए गए हैं, तो इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ। हमारा फर्ज बनता है यहाँ भी दरख्त लगे, इनकी हिफाजत करें। दुनिया में इस टाइम ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। इससे बचने के लिए बेहतरीन हाल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाए। ज़िले इंतजामिया की तरफ से हालिया शजरकारी मुहिम के दौरान 50,000 नए पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया था, जिनमें से 45,000 से ज्यादा नए पौधे लगाए जा चुके हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने हिस्से के न सिर्फ नए पौधे लगाएं, बल्कि हुकूमती इदारों और समाजी तंजीमों की तरफ से लगाए गए पौधों की हिफाजत भी करें। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज, ननकाना साहिब। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, बलूचिस्तान की बेटी आयशा बलोच ने पाकिस्तान का परचम सर बुलंद कर दिया। एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। श्रीलंका में एशियन गेम्स के रेसलिंग फाइनल में आयशा बलोच ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। आयशा बलोच बेहतरीन तकनीक, मजबूत दावपेच और शानदार एतमाद के बाइस टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहीं। फाइनल मुकाबले में कामयाबी के बाद उन्होंने सजदा शुक्र अदा किया। आयशा बलोच की ये कामयाबी बलूचिस्तान की नौजवान खवातीन के लिए हौसले और उम्मीद का पैगाम है। नाज़रीन, बलूचिस्तान की बेटी आयशा बलोच ने पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया है और एशियन गेम 2026 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इससे मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि नेशनल T20 कप का फाइनल कल खेला जाएगा और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में कराची वाइट्स और एबटाबाद रीजन की टीमें टाइटल के लिए आमने सामने होंगी। शायकीन के लिए दाखिला मुफ्त है। मुकाबला कल रात 8 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। कराची वाइट्स की टीम दूसरी मरतबा टाइटल जीतने की कोशिश करेगी, जबकि एबटाबाद की टीम पहली मरतबा टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म है। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान विमेंस टीम आयरलैंड से इंग्लैंड पहुंच गई है। कौमी विमेंस स्क्वाड डबलिन से बर्मिंघम के रास्ते नॉटिंघम पहुंचा। वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान खवातीन टीम अपना पहला वार्म अप मैच श्रीलंका के खिलाफ डर्बी में खेलेगी। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में खेला जाएगा। ग्रुप ए में पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 14 जून को भारत के खिलाफ बर्मिंघम में खेलेगी। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव करियर के पहले ग्रैंड स्लैम टाइटल से सिर्फ एक कदम दूर हैं। वर्ल्ड नंबर 3 ज़वेरेव फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में उनका मुकाबला इटली के फ्लावियो कोबोली से होगा। पेरिस में खेले जा रहे टेनिस ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में आलमी नंबर 3 ज़वेरेव ने जमहूरिया चेक के नौजवान खिलाड़ी जैकब मैंसेक को 4 सीटों के सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। 29 साला ज़वेरेव ने मैंसेक को 7-5, 6-2, 3-6 और 6-3 से हराया। ज़वेरेव इससे कबल 3 ग्रैंड स्लैम फाइनल्स हार चुके हैं। एक और सेमीफाइनल में इटली के फ्लावियो कोबोली का मुकाबला हमवतन मेटेओ अर्नाल्डी से होता है। ताहम अर्नाल्डी वायरल इन्फेक्शन के बाइस मैच से दस्तबरदार हुए और फ्लावियो कोबोली को वॉकओवर मिला। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के आगाज से कबल वर्ल्ड कप ट्रॉफी मेक्सिको सिटी पहुंच गई। वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर के आखिरी मरहले में वर्ल्ड कप ट्रॉफी मेक्सिको सिटी में नुमाइश के लिए पेश की गई। तकरीब में मेक्सिको के मेयर के अलावा ब्राजील के साबिक आलमी चैंपियन रोबर्टो कार्लोस और मेक्सिको के लेजेंड फुटबॉलर ह्यूगो सेंचेज ने शिरकत की। रोबर्टो कार्लोस ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाकर हाजरीन का जोश बढ़ाया। मेक्सिको 11 जून को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इफ्तिताही मैच के साथ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगी। फीफा वर्ल्ड कप के आगाज में चंद दिन बाकी हैं। अर्जेंटीना वर्ल्ड कप के दिफा के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ नजर आ रहा है। अमेरिका के शहर कैंसस सिटी में स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अर्जेंटाइन के तरबियती सेशन में साथी खिलाड़ियों के साथ हिस्सा लिया। इससे कबल मेसी बाएं हैमस्ट्रिंग में थकन के बाइस चंद रोज इंफरादी ट्रेनिंग कर रहे थे। मेसी की फिटनेस में बेहतरी आ रही है और तवक्को है कि वो 16 जून को अलजायर के खिलाफ अर्जेंटीना के पहले मैच के लिए दस्तयाब होंगे।
नाज़रीन, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए स्पेन की कौमी टीम अमेरिका पहुंच गई है। यूरो 2024 की फातेह हिस्पानवी टीम अमेरिका के शहर चिटानूगा पहुंची तो मद्दाहों की बड़ी तादाद ने टीम का शानदार इस्तकबाल किया। शहर की मेयर ने भी इस पेंशन स्क्वाड को खुशामदीद कहा। टीम होटल के बाहर मौजूद शायकीन ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के हक में नारे लगाए। स्पेनिश वर्ल्ड कप से कबल पीर के रोज़ मेक्सिको में पेरू के खिलाफ दोस्ताना मैच खेलेगा। नाज़रीन, हिस्पानवी टीम अपने वर्ल्ड कप सफ़र का आगाज़ 15 जून को केप वर्दे के खिलाफ मैच से करेगी। 21 जून को एटलांटा में सऊदी अरब, जबकि 26 जून को मेक्सिको के शहर ग्वाडालाखारा में यूरुग्वे के मुद्दे मुकाबले आएगा। पुर्तगाल की कौमी फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप की तैयारियों में मसरूफ़ है। मायानाज़ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी टीम के साथ ट्रेनिंग सेशन में शरीक हैं। पुर्तगाल के साहली शहर ऑयरस में क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी टीम के हमरा वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में भरपूर ट्रेनिंग कर रहे हैं। 41 साल रोनाल्डो अपने करियर का छठा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और पुर्तगाल की क़यादत करेंगे। हालिया यूएफा नेशंस लीग जीतने के बाद पुर्तगाल को आलमी एजाज़ के मजबूत उम्मीदवारों में शुमार किया जा रहा है। पुर्तगीज़ टीम वर्ल्ड कप से कबल चिली के खिलाफ दोस्ताना मैच खेलेगी। रोनाल्डो की टीम 12 जून को अमेरिका पहुंचेगी। पुर्तगाल अपना पहला वर्ल्ड कप मैच 17 जून को जमहूरिया कांगो के खिलाफ खेलेगा। वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के सिलसिले में इंग्लैंड की फुटबॉल टीम का तरबियती कैंप अमेरिका में जारी है। इंग्लैंड की कौमी टीम ने अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया, जहां खिलाड़ी वर्ल्ड कप के दौरान मुतवक्के शदीद गर्मी और टाइम जोन के फ़र्क से हम आहंग होने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड न्यूजीलैंड और कोस्टारिका के खिलाफ दोस्ताना मैचेस भी खेलेगा, जबकि टीम 17 जून को क्रोएशिया के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप सफर का आगाज करेगी। नाज़रीन, वर्ल्ड कप के बुखार ने जहां शायकीन फुटबॉल को अपनी लपेट में ले रखा है, वहीं मेक्सिको के शहर ग्वाडालाखारा के चिड़ियाघर के जानवर भी अपनी मुनफरिद पेशगोइयों के बाइस तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। मुख्तलिफ जानवरों ने खुराक, झंडों और फुटबॉलर्स के जरिए आइंदा मैचों के मुमकिना फातहीन का इंतखाब किया। हाथियों ने मेक्सिको को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फातेह करार दिया, जबकि गोरिल्लों ने स्पेन के मुकाबले में यूरुग्वे को इंतखाब किया। केपी बयास ने मेक्सिको और जनूबी कोरिया के दरमियान मैच को बराबर करार दिया, जबकि मकाओ तोतो ने जमहूरिया चेक के खिलाफ मेक्सिको की हमायत की। पोमा ने जनूबी कोरिया और ज़राफ़ों ने कांगो के हक में पेशगोई की। इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है। जनूबी कोरिया की एनसी यंग और मेज़बान मुल्क के जोनाथन क्रिस्टी सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। एनसी यंग ने खवातीन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की योरनीपा वुचुचोवन को स्ट्रेट गेम्स में शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला चीन की चिन यूफी से होगा। एक और क्वार्टर फाइनल में जापान की इकाना यामागुची ने ताइवान की हरीफ को शिकस्त देकर लास्ट फोर में जगह बनाई। मर्दों के सिंगल्स मुकाबलों में इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने जापान की योशी तनाका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में रसाई हासिल की, जबकि ताइवान के चो टाई चिन ने भी सेमीफाइनल में पहुंच गए। खेल की खबरों का अहवाल आपने जाना, अब रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहेंगे इजाज़त, एक ब्रेक, उसके बाद आप मुलाहिजा करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए पीटीवी न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।